PDF Yes, मिला? ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. Fine. So we completed with amplitude. That is the first characteristic to understand your wave. That was the maximum displacement of a particle from its mean position. I took an example of table for explaining it. That if I take a table, middle one is the mean position. Displacement of a particle from its mean position on any of the side is considered to be an amplitude. किसी भी एक साइड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको देखना होता है. Of course, if you're talking about displacement, so SI unit will be meter and CGS unit will be centimeters for sure. So let's go ahead with the next characteristic, that is wavelength. Till now, you have studied an general explanation for wavelength, that the distance between consecutive crust and trough, if I consider this as a wave, this is my wave. So simply it is said that the simple explanation that you have studied till now is the distance between consecutive crust and trough is considered to be your wavelength, which is represented by lambda. Lambda. Correct? But we'll have a more scientific explanation for wavelength now. और थोड़ा सा scientific way में wavelength को समझते हैं. Okay. Now the scientific explanation for a wavelength is simply, it is the distance between the two successive positions or particle which are in the same state of vibration. ये wavelength जो होता है, ये वो distance है उन दो particles के बीच में या उन दो points के बीच में का distance है जो same state of vibration में होते हैं. Same state of vibration का मतलब ये है जिनका velocity same हो. They should have a same velocity. और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि if I'm talking about velocity, तो velocity is a vector quantity. Vector quantity in the sense they should have same magnitude as well as direction. Now, if I'm considering this particular part as a one wave, and let us assume that waves each and every part have a same speed. Okay, waves have a same speed. Now the second factor is the direction. So if you observe this particle, this is somewhere pointing upward. And if you observe this particle, अगर आप यहाँ के particle का consider करो, this one, Downward. तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है. Again अगर आप इस particle को consider करो, Upward. तो ये वाला particle भी ऊपर की तरफ point कर रहा है. Means they are at the mean position and they are pointing in upward direction. So I can say that they are in same state of vibration. These two particles, I will name it A, B, C. So these two particles are in the same state of vibration because they both are at the mean position. Their position is same and the direction of vibration is also same. This one is also going up and this one is also going up. I cannot say that these two particles are in the same state of vibration or these two particles, because this particle here, if you see B and C both are at the mean position, but here C is going upward and B is coming downward. So same state of vibration in the sense the position is same and as well as the direction of vibration is also same. And you can observe the direction of vibration in these two conditions. Are you clear with the part? What I'm trying to say? Yes. समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes. Okay. So I can simply define the wavelength as it is the distance in a scientific way. It is the distance between two successive particles which are in same state of vibration. Now, एक और डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखो. I can also define wavelength from that particular point. This particle and this particle from here to here
can I say it is wavelength lambda? Yes. Yes. Here also particle is at the extreme position. Here also particle is at the extreme position. Extreme position. Here also the vibration direction of vibration is downward, and here also the direction of vibration is downward. So I can consider these 2 points as these are the 2 successive particles. Successive मतलब just उसके बाद आने वाला, क्योंकि ऐसा एक और पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा वापस से यहाँ पर जो जिसका सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होगा, तो मैं इसको और इसको नहीं कंसिडर कर रही हूँ, जस्ट सक्सेसिव वन, उसके जस्ट बाद आने वाला. So it is the distance between the wavelength can be defined as the distance between the 2 successive particles which are in the same state of vibration. Successive particles, just तुरंत वाला. So I can also say this is 1 lambda. 1, see you can also define as, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना lambdas को. This is lambda का ये 4 पार्ट है, देखो. This is lambda by 4. यहाँ से यहाँ तक lambda by 4, यहाँ से यहाँ तक lambda by 4 और यहाँ से यहाँ तक lambda by 4. तो 4 lambda by 4 मिलके क्या बनता है? Lambda by 4 plus lambda by 4 plus lambda by 4 plus lambda by 4. Lambda. That is 4 lambda by 4. That is equals to lambda. So the more scientific way to understand wavelength is simply say it is the distance between 2 successive particles which are in the same state of vibration. अभी तक हम लोग compression और rarefaction के terms में या crust और trough के terms में याद रखते थे. But more scientific explanation is this one, that it is the distance between the 2 particles which are in the same state of vibration. कभी-कभी आपको wave यहाँ से ऐसा पूरा ना देकर यहाँ से देगा, तो आपको जब वो wave यहाँ से देगा तो आपको simply याद होना चाहिए कि एक लैम्बडा यहाँ खत्म नहीं होता, फिर एक लैम्बडा जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म होता है. फिर तो ये बात इसलिए आप जब आप छोटे बच्चे रहते हो तब तक आपको वेव ऐसा बना के दे देता है वो, और वो आप बोलते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक इस वन वेवलेंथ और 1 लैम्बडा. बट अब आप हायर स्टैंडर्ड में हो तो वेव यहाँ से न देकर कभी कभी आपको वेव यहाँ से दे देगा. तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर 1 लैम्बडा यहाँ पर खत्म नहीं होता, यहाँ पर 1 लैम्बडा इस पॉइंट पे खत्म होता है. सो इसीलिए द मोर बेटर एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड wavelength is it is the distance between the successive particles which are in the same state of vibration. Clear with this term? समझा सबको? मिस बोलो. मिस ऊपर बीच में से लिया है ना, बोलो, मतलब जो ऊपर का जो एग्जांपल दिया था वेवलेंथ का ऊपर का, ये हाँ यहाँ मिस से इधर लिया से वो, हाँ वो लाइन से से लिया यहाँ है, और हाँ और मिस इधर ऊपर से कैसे लिया है? वो लाइन के ऊपर से लिया है. इस पॉइंट से लिया है. हाँ तो मिस हाँ, तो वैसे यहाँ क्यों? पर इसलिए मैंने बोला ले सकते हो क्योंकि इट्स अ वेव का साइज. कभी कभी आपको वेव यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो भी आपको 1 वेवलेंथ डिफाइन करने आना चाहिए. इसलिए मैंने कहा कि जब तक आप छोटे बच्चे थे तब तक आपको हर वेव आपको 0 से स्टार्ट करता हुआ दिखाया है. पर वेव्स इतने फास्ट होते हैं कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको हर बार वेव यहीं से दिखे, कभी कभी आपको तो वेव यहाँ से भी दिखेगा. फर्स्ट एग्जांपल में भी तो मिस ऊपर से ले सकते हैं ना? ले सकते हो. मैंने जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन 2 डायग्राम्स अलग अलग बनाकर दिखाया है. दैट्स ऑल. ये एक अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम है. जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. फर्स्ट में भी मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक को ऑफ कोर्स आई विल से दैट यहाँ से यहाँ तक इज माय 1 वेवलेंथ. समझ में आ रहा है? ओके. मैंने सिर्फ एक अलग डायग्राम इसलिए बनाया कि आपको इजीली समझे, आप कंफ्यूज ना हो. कि एक में मैंने यहाँ से जब मैंने कंसीडर किया तो माय वेवलेंथ 1 लैम्बडा इज ओवर हियर, यहाँ से यहाँ तक, और वही चीज जब मैंने यहाँ से शुरुआत की है तो माय 1 लैम्बडा कवर्स कंप्लीट ओवर हियर. सो that is what I am trying to explain the explanation by these 2 particular diagrams. समझा? यस मिस. Everyone is clear with this? बोलो. लैम्बडा अपॉन 4 क्यों है? अगर ये पूरा एक लैम्बडा है तो ये इसका 1/4 पार्ट नहीं दिख रहा है. ये अगर ये एक पूरा लैम्बडा है, ये तुमको 1/4 पार्ट नहीं दिख रहा है. जब आप 1 रुपए बोलते हो तो 1 रुपए 4 पार्ट में अगर आप डिवाइड करो तो कितना होता है? 25 पैसे. 1/4 1/4 1/4 1/4 ना. तो अगर ये पूरा एक लैम्बडा है तो ये इतना पार्ट कितना होगा? सिर्फ इतना पार्ट कितना होगा? 1/4. दैट इज लैम्बडा बाय 4. लैम्बडा बराबर ना? है या ना?
समझा? Yes. This total is lambda, so this is the fourth part of lambda, that is lambda by 4. Clear with the things? समझा ये एक्सप्लेनेशन सबको? स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब समझा? उसका पोजीशन और उसका वाइब्रेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है वो। होप यू आर क्लियर? Yes. ओके, सो अच्छा ठीक है, आई एम गिविंग यू वन डायग्राम, मुझे जरा बताओ कि इसका वन लैम्बडा कहाँ पर आएगा। आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम योर, यहाँ पे इसका वन लैम्बडा कहाँ पर खत्म होगा? विच पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल इसके सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में रहने वाला है? Fifth particle. Fifth 1 particle. 2 3 4 5th, yes. So here अगर आप यहाँ से यहाँ कंसीडर करोगे तो दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस इज योर वन लैम्बडा। समझा? Yes, ma'am. समझा एवरीवन? सो दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ से मेजर कर रहे हो। जहां से भी मेजर करोगे वहां से जो जस्ट नेक्स्ट पार्टिकल आने वाला है जिसका वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन उसी वाले जैसा हो, सेम हो, तो यू से दैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू दैट पॉइंट इज वन लैम्बडा। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So let's start with the next property. Of course, lambda, wavelength is the size of a wave, length of a wave, and the symbol for wavelength is lambda, and SI unit for wavelength is meter, CGS unit is centimeter. These are the basic parts. So you should know this. Next is frequency. Miss, थोड़ा Already you ऊपर know थोड़ा about frequency. Don't write anything. Please don't write anything. I'm going to give all the notes. कुछ भी लिखो मत, कुछ भी ड्रॉ मत करो, कुछ भी लिखो मत। मेरे नोट्स में सारे एक्सप्लेनेशन होंगे। Okay. Frequency. Now you already know about frequency. Frequency can be defined as number of vibrations of a particle in 1 second. एक सेकेंड में आपका पार्टिकल कितना वाइब्रेशन कर रहा है, दैट डिफाइंस द फ्रीक्वेंसी। एक वाइब्रेशन का मतलब होता है एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक लैम्बडा। वन वाइब्रेशन इज योर वन लैम्बडा, कीप इट इन माइंड। वाइब्रेशन का मतलब होता है ओवरऑल क्रस्ट एंड ट्रफ। एक क्रस्ट एंड ट्रफ या एक लैम्बडा को आप वन वाइब्रेशन कंसीडर करते हो, कीप इट इन माइंड। सो एक सेकेंड में वो कितने ऐसे क्रस्ट एंड ट्रफ बना रहा है, दैट गिव्स यू द फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेज 35 हर्ट्ज, इट सिंपली मीन्स कि आपके वेव ने एक सेकेंड के अंदर 35 क्रस्ट एंड ट्रफ बना लिया है। 35 क्रस्ट एंड 35 ट्रफ, ऐसे 35 पूरे बनाए हैं। ये एक सेट है, ऐसा 35 सेट बनाए हैं। Hope you are clear what I'm trying to say. So frequency is number of vibrations in 1 second. Of course, it is represented by different letters. Sometimes it is represented by nu. This is a Greek letter, nu. So फिलहाल आपको इसी से represent किया जाएगा, that is small n. Of course, the SI unit for frequency is hertz. It is measured in hertz. So if someone says it is 350 hertz, तो आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए कि एक सेकंड के अंदर 350 वाइब्रेशंस हो चुके हैं, 350 क्रस्ट ऑफ बन चुके हैं। क्रस्ट ऑफ का एक 350 सेट्स बन चुका है। ये बात आपको दिमाग में सेट हो जानी चाहिए तुरंत। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। मिस Time स्क्रीन period is- फ्रीज हो गया। टाइम पीरियड लिखा हुआ नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख रहा है पेन दिख रही है मेरी? yes Yes. Yes. Okay. So next is time period. Now of course, एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाने के लिए, that is one लैम्बडा बनाने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है? The time required for one vibration is considered to be a time period. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जरा
definition को differentiate करो. It was, your frequency was lambda per number second. of vibrations in 1 second. And here, the time required for one vibration is time period. Of course, it is represented by capital T. And time period है तो of course the unit is second. Seconds. Seconds कभी नहीं बोलना. Second. You know, अभी आपने शायद units and measurement पढ़ा होगा. We never take units in plural form. कभी नहीं लेते हम. So it is simply second. Yes. Yes. And we know the relation n is equals to 1 by t. आपने बहुत basic में भी पढ़ा है. Yes. The frequency Yes. और time period they are inversely proportional. Okay. Next is velocity. मिस इसका प्रूफ है n is equals to 1 by t. Yes, proof है, but आपको नहीं है. And बहुत simple सा फंडा, explanation बहुत simple है इसका. इसका explanation is quite simple. n is equals to 1 by t. Simple सा बात है. यहाँ पे देखो. इसको proof की भी जरूरत नहीं है. हमने frequency define कैसे की? Number of vibrations in 1 second is defined as frequency. Number of vibrations in 1 second is defined as frequency. This is number of vibration. तो एक वाइब्रेशन के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है ऐसा बोलते हैं हम. करेक्ट. हम ऐसे निकलते हैं ना कि 10 पेन के लिए मुझे 20 रुपए लगे हैं तो 5 पेन के लिए कितने लगेंगे. देन वी गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. Yes. तो सिंपली वही चीज कर रहा है कि अगर n नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए n नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी. सो एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम पीरियड लग रहा है. तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो nt इज इक्वल्स टू 1 आता है. देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 1 by t आता है. दिस क्वाइट सिंपल. Yes. समझा. सो ये बहुत सिंपल रिलेशन है. कोई खास ऐसे अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसको. ये सिंपल रिलेशन है जो आपने बचपन से सीखा हुआ है कि भाई इतने के लिए इतना लगता है तो इतने के लिए कितना लगेगा. तो अगर 1 सेकेंड में इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं विच इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी, तो एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम पीरियड लग रहा है दैट इज कैपिटल टी. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर रिलेशन. सो नथिंग न्यू इज देयर. कुछ ऐसा अलग नहीं है. So keep it in mind कि n is inversely proportional to of course time period. Next is velocity. Velocity is आपको भी पता है distance covered per unit time और displacement covered. Actually distance के term में ही बात करना. So distance covered per unit time is velocity. So of course speed और velocity. स्पीड ही बोलना चाहिए, वेलोसिटी वैसे नहीं बोलना चाहिए. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम. टॉक इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ओनली, डोंट टॉक इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बिकॉज़ वेलोसिटी का फंडा थोड़ा अलग है. सो योर डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट वेव. सो वेव का डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लैम्बडास. Lambda. सो लैम्बडा बाय टी. T. Lambda by T is the time period और 1 by t हमको पता है क्या होता है. 1 by t is n. Frequency. So V is Lambda equals to into n lambda. frequency. ये बहुत Lambda important into relation है. This relation is very important. ये आपको Yes. हर जगह यूज आने वाला है. बहुत जगह पे सम सॉल्व करने में इसको बहुत हेल्पफुल है. Okay. Now Miss velocity of sound frequency पे कैसे depend होगा? क्यों नहीं होगा आप मुझे बताओ. सिंपल सा फंडा है कि क्यों नहीं डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे. अब मुझे एक एक्सप्लेनेशन में आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ. Yes, ध्यान से समझा. मेरे को आंसर दो. समझ गया. एक वेव Yes, मैं समझा. 5 फ्रीक्वेंसी बना रहा है और एक वेव उतने ही टाइम में 10 फ्रीक्वेंसी का 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है. तो आप किसकी वेलोसिटी को ज्यादा मानोगे. 10 hertz का. ऑफ कोर्स. सो कहीं ना कहीं रिलेशन हो गया ना डिफाइन दोनों के बीच में. Yes. ओके लेट्स गो अहेड. नाउ एक स्टेटमेंट देने जा रही हूँ, जरा ध्यान से समझो और समझने की कोशिश करो. कि स्टेटमेंट आपके एमसीक्यूज में काफी बार पूछा गया स्टेटमेंट है. कॉलेज वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है हमेशा से. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट. जब भी वेव
when a wave moves from one medium to another medium, जब कोई भी वेव एक मीडियम से एक वन मीडियम से another medium में पास होता है, it goes from one medium to another medium. For example, glass to water, water to glass, air to glass, air to water, any of the part, one medium to another medium. इस वेव की वेलोसिटी और वेवलेंथ, ये दोनों चीज चेंज हो जाती है, इट चेंजेस, बट जो कांस्टेंट रहती है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी. When a wave goes from one medium to another medium, उसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट आता है, उसके वेवलेंथ पे इफेक्ट आता है, बट ये जो फ्रीक्वेंसी है इट रिमेन्स कांस्टेंट. उसका जो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड बन रहा है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. वो कभी कम या ज्यादा नहीं होता, इट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज होने का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन तो आपका प्रिज्म है. जब आपका व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है वो डिस्पर्स होता है 7 कलर में, क्योंकि हर कलर के अपनी खुद का, अब हर कलर का अपना खुद का वेवलेंथ होता है और हर कलर को प्रिज्म एक अलग अपोजिशन, एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करता है. ये चीजें आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है. Yes. कि when a light passes from a prism, Yes. every color have its own refractive index. एक ही प्रिज्म आपके अलग अलग कलर को अलग अलग अपोजिशन प्रोवाइड करता है. रेड कलर को सबसे कम अपोज कर पाता है क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा होता है. तो वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इज फास्टेस्ट, इसलिए रेड कलर सबसे पहले बाहर निकलता है. उसके बाद रेड कलर के बाद बाकी के कलर्स धीरे धीरे निकलते हैं. सबसे लास्ट में वॉयलेट निकलता है. Violet. वॉयलेट का साइज सबसे छोटा होता है. समझ रहे हो? Yes. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes, ma'am. Yes. So when a wave goes from one medium to another medium, velocity changes, wavelength changes, but this frequency, this part, it remains constant. ये हमेशा constant होती है. इसको याद कैसे रख सकते हो? लोकल ट्रेन का एग्जांपल ले लो और खुद को वेव, जितने लोग खड़े हैं उनको वेव मान लो. जब लोग लोकल ट्रेन में एंटर करने की कोशिश करते हैं उनका वेलोसिटी इट गेट चेंजेस. जितने फास्ट आप या जितने स्लो आप प्लेटफॉर्म पे होते हो उतने स्लो आप अंदर जाके नहीं रहते. आपका वेलोसिटी चेंज हो जाता है. वेवलेंथ अपने आप अपने साइज को कंसीडर कर लो. बाहर आप एकदम फैलकर खड़े रहते हो, लोकल ट्रेन में आप फैलकर खड़े नहीं रह सकते. बट जितने लोगों को जाना है, जो नंबर्स है जाने का, वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होता है, वो भर ही जाता है. सो व्हेन यू गो फ्रॉम प्लेटफॉर्म इनटू द लोकल ट्रेन, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, हाँ इसको ऐसा मत लो कि मैं सच में कुछ कनेक्शन है क्या, नहीं, जस्ट एक याद रखने का तरीका बता रही हूँ एमसीक्यू के लिए, कि जब आप लोकल ट्रेन में चढ़ते हो ये लोगों के हिसाब से डिसाइड होता है अंदर कितने लोग हैं. आपका साइज, आप हो मोटे बट अपने आप एडजस्ट होते चले जाते हो. सो दिस ऑल्सो गेट चेंजेस व्हेन यू गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. बट जितने लोगों को ऑफिस जाना है उनको तो जाना ही है. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द कांस्टेंट. चाहे लोकल ट्रेन कितनी भी भरी हो, सेकंड वाली आएगी उसमें जाएंगे बट जाएंगे. So this and this changes when you go from one medium to another medium, but this remains constant. Hope you understand what I'm trying to say. Yes. समझ रहे हैं? Yes. Yes. Okay. So let's move to the next characteristic. मैंने कौन सी characteristic बता दी, मैं एक बार थोड़ा सा short review ले रही हूँ. We talked about amplitude. We talked about wavelength. Wavelength का एक नया scientific explanation समझा कि भाई अब क्रस्ट और ट्रफ जैसे टर्म पे बात नहीं करना है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पे बात करना है. नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज वेलोसिटी, एंड द लास्ट पार्ट वी डिस्कस की वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है मीडियम टू मीडियम, बट फ्रीक्वेंसी हमेशा वेव की कांस्टेंट रहती है. इट नेवर चेंजेस व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. नेक्स्ट टॉपिक इज डबल पीरियोडिसिटी. ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वेव की. डबल पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब ही है कि एक इंटरवल के बाद रिपीट होना. पीरियोडिक हम लोग बोलते हैं ना, हमारा
पीरियड हम लोग का डिफाइन होता है कि ओके अभी इंग्लिश का पीरियड है, या आपका पीरियड डिफाइन होता है कि पहले ये है, पहले मानसी मैम का लेक्चर है या उसके बाद किसी का लेक्चर है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि एक इंटरवल के बाद चीजें रिपीट होने वाली है। पीरियोडिक का मतलब ही होता है कि इंटरवल के बाद रिपीटेशन होना। डबल पीरियोडिसिटी मतलब ये कि दो चीजों को लेकर पीरियोडिसिटी होती है वेव में। एक तो वेव इज पीरियोडिक विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, इट रिपीट्स इटसेल्फ। यहां से ये वेव आगे गया, वापस ऐसा ही वेव इसी पोजीशन पे वापस रिटर्न आएगा, फिर ये वाला वेव आगे गया। सो अगेन एंड अगेन एट दिस पर्टिकुलर स्पेस इट इज गोइंग टू रिपीट इट्स प्रॉपर्टी। अब एक देख सकते हो, दिस टू दिस, वापस से वही चीज रिपीट हो रही है, वापस से वही चीज। और ये वेव पहली वेव है, ये पहली वेव बन गई, आगे पास हो गई, उसी जगह पे अब वैसी ही सेम दूसरी वेव आ जाएगी। सो इट इज पीरियोडिक विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। यहाँ पर आपको बार बार वैसी ही वेव देखने के लिए मिलेगी। So it is periodic with respect to space and it is also periodic with respect to time. एक equal interval of time के बाद ये अपने आप को repeat करती है। This is T ना, time period है, ये single wave का time है। तो इसी time के बाद समझो एक वाइब्रेशन को बनने के लिए 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 सेकंड के बाद वापस आपको वैसी ही वेव देखने के लिए मिलेगी, वापस 1 सेकंड के बाद वैसी वेव मिलेगी। सो डबल पीरियोडिसिटी का मतलब यह है कि उसी जगह पे आपको सेम वेव वापस देखने के लिए मिलेगी। और पीरियोडिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब यह है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार आपको सेम वेव देखने के लिए मिलेगी। सो ये जो वेव होती है ये स्पेस और टाइम दोनों के साथ अपने आप को रिपीट करती है। इट रिपीट्स इटसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर स्पेस एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। सो इट हैव अ डबल पीरियोडिक नेचर। इट रिपीट्स इट्स स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी स्पेस पे आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बार बार उसी जगह पर आपको और उसी उतने ही टाइम इंटरवल के बाद आपको बार बार सेम स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। सो इट इज पीरियोडिक विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड पीरियोडिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों चीजों से पीरियोडिक है, इसीलिए वी से इट हैव अ डबल पीरियोडिसिटी का नेचर। तो समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? Yes. आप भी डबल पीरियोडिक थे। कैसे? आप अगर आपका स्कूल मॉर्निंग 7 o'clock का है, इफ योर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 o'clock, आप 7 o'clock को स्कूल में पहुंच जाते थे। So that school, that place was repeating every day, and that time with respect to time also you were repeating. So you are periodic with respect to the position also, that is with respect to space also and with respect to time also. Hope you're understanding क्या बोल रही हो? बार बार आप अपने आप का अपना जो शेड्यूल है इस पोजीशन पे आप रिपीट करते हो। So when you repeat yourself or when you possess the property कि ठीक है आपको वापस से वही उसी जगह पर और उतने ही इंटरवल के बाद बार बार अपने आप का अपना स्ट्रक्चर रिपीट करना है, यू से दैट यू आर डबल पीरियोडिक इन नेचर। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा डबल पीरियोडिसिटी क्या है? Yes. मिस एवरीवन बाकी के लोग बोलो। मिस सेम प्लेस पे ही होता है ये बार बार? ऐसा नहीं है, ये वेव यहाँ बना, आगे चला गया, फिर एक नया वेव आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, उतने ही टाइम इसी पोजीशन पे उतने ही टाइम। पहला वेव को 1 सेकंड लगा था, दूसरे वेव को भी 1 सेकंड लगेगा, तीसरा वेव को बनने के लिए भी 1 सेकंड लगेगा। तो उसी जगह पे आपको एक सेम इंटरवल के बाद आपको सेम वेव देखने के लिए मिल रहा है, मतलब प्लेस भी सेम है और टाइम भी सेम है। सो इट इज पीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ऑब्जर्व मीन्स करने मतलब के लिए एक ही देखा प्लेस पे गया। हो रहा है ना, एक ही प्लेस पे हाँ। हो रहा है ना, सेम टाइम हाँ पे? हाँ, Okay. सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। समझा? यस। यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज सबको क्लियर है? यस। ओके, नाउ Miss द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Miss बोलो। velocity of sound ये फिक्स नहीं होता, जैसे लाइट का 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। Of course, velocity of sound is 340 meter per second. 340 से 350 के बीच में जाता है। 334 is normally at room temperature. Okay. So let's move ahead with the next and the last property, last characteristic of a wave, that is phase. इसके बारे में आप आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन है, बट आगे हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फेज, दिस इज समथिंग न्यू। फेज का मतलब होता है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। समझाती हूँ क्या है मीनिंग। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब
वो किस पोजीशन पे है, उसका जो एंगल बना है वो कितना है, उसने पहले से कोई एक एंगल बनाया हुआ था जब मैंने ऑब्जर्व किया, या ओके डोंट इंक्लूड दिस एंगल, अभी आपको समझेगा नहीं। उसका पोजीशन क्या है, उसका वेलोसिटी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो सारी चीजें आपको फेज समझाती है। फेज एक्सप्लेन्स यू द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल, कि वो कौन से पॉइंट पे है। फेज एक्सप्लेन्स यू द whether it is moving in the positive direction or negative direction, वो सारी चीजें, उसका पूरा कंडीशन कि वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या उसका वैल्यू है, कहाँ पर बैठा है, किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है, वो सारी चीजें, सारा स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक कि वो आगे की तरफ जाने वाला है, पीछे की तरफ जाने वाला है, किस एक्स पोजीशन पे बैठा है, उसका प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में है, उसका वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में है, वो सारी चीजें आपका ये स्टेट ऑफ ऑसिलेशन समझाता है। दैट इज द फेज। दिस फेज एक्सप्लेन्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, उससे रिलेटेड कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, अभी वो कौन से पोजीशन पे है, ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको, या किसी टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको ये फेज दे देता है, विच इज कॉल्ड अ स्टेट। तो हम लोग फेज को डिफाइन कैसे करते हैं? द फेज इज डिफाइंड एज, और इट कैन सिंपली से द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड अ फेज। फेज जो है, मूवमेंट किस डायरेक्शन में होने वाला है, किस डायरेक्शन में वो मूव करने वाला है, उसका पोजीशन एक्स एक्सिस पे कहां पर है, दिस एवरीथिंग डिफाइंस दिस फेज। फॉर एग्जांपल, अगर समझो आपका पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये फेज बताएगा कि आपका पार्टिकल इस तरफ आगे की तरफ जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एक्स पे वो कहां पर, कौन से एक्स पोजीशन पे बैठा है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम टी के बाद आपका ये पार्टिकल कहां पहुंचेगा, वो सारा एक्सप्लेनेशन ये अकेला फेज दे देता है। सो फेज सिंपली एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा व्हाट आई सेड? मैम ये मेजर किस में होता है? इट इज मेजर्ड इन थीटास, एंगल में मेजर किया जाता है, एंगुलर टर्म्स में इसको मेजर किया जाता है। रेडियंस, रेडियंस, डिग्रीज में इसको मेजर किया जाता है नॉर्मली। टाइम में भी होता है मैम? टाइम एक्चुअली मैं बोलूं तो फेज इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सी यू नो, इफ आई एम सेइंग कि डिग्रीज में है, मतलब साइन ऑफ थीटा, थीटा इज अ डिफरेंट पार्ट, इसको हम लोग फंडामेंटल में भी कंसीडर नहीं करते हैं, और वी नेवर कंसीडर इट एज डिराइव्ड यूनिट आल्सो। इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट ओनली, सप्लीमेंट्री यूनिट है ये, करेक्ट? सो फेज इज कंसीडर्ड अंडर सप्लीमेंट्री यूनिट, so either it can be measured in radians or thetas, or simply you can say that if you consider in the terms of fundamental and derived unit, you say that it is unitless, क्योंकि फंक्शन के अंदर कभी भी यूनिट नहीं होता। कीप इट इन माइंड कि ये जो फंक्शन, दिस साइन, कॉस, लॉग, ये सब फंक्शंस हैं, और फंक्शन के अंदर कभी भी फंडामेंटल या डिराइव्ड यूनिट को आप नहीं लेते। अगर आप ले रहे हो तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल सिर्फ फेज के बारे में समझोगे, व्हाट इज फेज, ये क्या है। जब मैं आपको वेव के बारे में और अच्छे से समझाऊंगी तब समझाऊंगी। सो फेज इज सिंपली कहाँ बैठा है, किसी टाइम के बाद कितना आगे बढ़ेगा, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको फेज दे देता है। एंड फेज इज सिंपली इट्स एन सप्लीमेंट्री यूनिट, इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ रेडियंस, डिग्रीज एंड सो ऑन। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में ये मेजर किया जाता है। वो भी अगला व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आ रहा है? यस मैम। बाकी के लोग मुंह बंद करके क्यों बैठे हो भाई? कुछ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? ये सब नहीं समझोगे ना, Yes, 12th ma'am. बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। फिर 12th में मुंह बना के बैठोगे, कोई पूछेगा फेज क्या है, आपको पता ही नहीं है फेज क्या है। मिस ये बताता है, मतलब एक मिस यस बोलो। मिस जो फर्स्ट पोजीशन पे जब ये होता है, फिर उसी मतलब उसी टाइम इंटरवल पे वो कौन सी पोजीशन में जाएगा वो ये बताता है ना। हाँ, कि एक टाइम इंटरवल के बाद ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारी चीजें फेज एक्सप्लेन करता है। मिस तो कैसे एक्सप्लेन करें? टाइम इंटरवल तो सेम होता है ना। See that we will explain with the help of an equation.
मैम ये कैसे एक्सप्लेन करता है उसके बारे में मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगी, अभी नहीं करूंगी। अभी सिर्फ आपको समझना है कि फेज जैसा कुछ होता है। अभी आपने बेसिक स्टार्ट किया है, मैं अभी आपको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ा रही हूँ। अगर ध्यान से देखो, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। वेव को लिखने का तरीका समझने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है, सम टाइप ऑफ दिस थिंग्स एग्जिस्ट, जो वेव का ओवरऑल स्टेट बता देगी। स्टेट बता देगी मतलब ये है कि वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कौन से एक्स पर जाके बैठेगा, या अभी फिलहाल वो कौन से एक्स पर है। वो सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन ये दे देता है। अब वो कैसे देता है वो हम जब वेव इक्वेशन लिखेंगे तब समझेंगे। समझ में आ रहा है बटे सेट? तो अगर आपको कोई बोलता है कि फेज क्या है, तो सिंपली आपको एक स्टेटमेंट देना है कि फेज मेरे वेव का या मेरे ऑसिलेशन का सारा स्टेट समझा देगा। अगर आपको किसी ने पूछा स्टेट का मतलब क्या है, तो बोलेगा कौन से डायरेक्शन में मेरा वेव आगे बढ़ने वाला है, मेरा वेव एक टाइम के बाद कहाँ जाकर किस पॉइंट पर कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं फेज एक्सप्लेन कर देता है। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes. Yes. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये फिनोमिना Yes, समझने ma'am. वाले हो Yes, बहुत। आगे जब हम ये पढ़ेंगे ना तब आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें मिस किया तो आपको कुछ नहीं समझेगा, और फिर आप 12th स्टैंडर्ड में आपके लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में आप पूरी तरीके से इसके साथ गेम खेलने वाले हो, फेज के साथ। वेवलेंथ एंड ऑल दिस आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपने वो सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी है। ये दिस इज समथिंग न्यू, दिस पार्ट इज समथिंग न्यू। अब जरा एक चीज पे आ रही हूँ। मैंने कहा स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। जरा इस पार्ट पे, इस पॉइंट पे ध्यान दो। आपको पूछना चाहिए था, मिस हम लोग वेव के बारे में बात करते करते ऑसिलेशन टर्म ला रहे हैं। व्हाई आई एम सेइंग ऑसिलेशन? कोई बता सकता है? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मैंने कहा, मैंने स्टेट ऑफ वेव नहीं बोला, मैंने स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बोला। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई आई एम सेइंग ऑसिलेशन? मैम वे ऑक्सीलेट ही तो करता है। एग्जैक्टली। वेव जो है वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता है। इट गोज अप डाउन, टू एंड फ्रो मोशन है इसका। वेव इज, अगर आप किसी वेव का, अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को, अगर आप इसका शैडो बना के देखो, ठीक है, लेट इट बी, प्रोजेक्टाइल नहीं समझेगा तो फिलहाल ठीक है। सो यहाँ पे ये जो वेव है ये कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है। एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, मतलब इसका मूवमेंट कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। सो इट इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सो इसीलिए मैंने बोला कि फेज जो है वो उसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बता देगा कि कहाँ पर बैठा है, नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, पॉजिटिव साइड में जाने वाला है या नेगेटिव साइड में जाने वाला है। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन का सारा कंडीशन, सारा एक्सप्लेनेशन फेज दे देगा। समझ में आया? यस। समझा? Yes. और Yes. ये 1 लैम्बडा, जो टोटल फेज आपका 1 लैम्बडा बनाता है, फेज एंगल, जो टोटल फेज एंगल आपका जो 1 लैम्बडा बनाता है वो कितना बनाता है? कितना होगा आपके हिसाब से? हाउ मच फेज एंगल इज मेड बाय 1 लैम्बडा? कितना बन रहा है? 360. 360. 360. दैट इज 2 पाई रेडियन, करेक्ट। Yes. सो एक लैम्बडा जो है टोटल फेज एंगल जो बनाता है, टोटल एंगल जो बनाता है वो 2 पाई का बनाता है। मीन्स समझा? वेव बड़ा है या छोटा है वो भी पता चलता है। वेव बड़ा है या छोटा है वो तो आपका, जब आप वेव इक्वेशन लिखोगे तो वो खुद बता देगा। जो लैम्बडा है उसके अंदर, उस फेज में जब आप लैम्बडा को इंट्रोड्यूस करोगे तो वो लैम्बडा एक्सप्लेन, फेज के अंदर कभी कभी लैम्बडा को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैंने कहा ना ये फेज आपको सब कुछ बता देगा। तो फेज में जब लैम्बडा को लेकर इक्वेशन बनाओगे तो वो लैम्बडा बता देगा कि भाई आपका वेव जो है वो बड़े लैम्बडा का है या छोटे लैम्बडा का है। Yes. समझ में आ रहा है? तो ये फेज सारा एक्सप्लेनेशन दे देता है आपके वेव का। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। नाउ लाइक नेक्स्ट, होप आपको यहाँ तक किसी कैरेक्टरिस्टिक में कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पेशली इस पे फोकस करो। आपको इसका 10% भी दिमाग में आ रहा है क्या कि मिस ने फेज बोला मतलब क्या? यस। Yes. यस। Yes.
Okay. आगे बढ़ू? Yes. Yes. Miss, Okay. Let's Yes. move ahead. Miss, Now we will discuss about characteristic of a medium. किसी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं. सी, एक बात हमेशा याद रखो कि जब एक वेव ट्रेवल करता है तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी तो मैटर करती ही है, साथ में वो कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रहा है वो भी बहुत मैटर करता है. आप उसको पानी में भगा रहे हो, एयर में भगा रहे हो, ग्लास में भगा रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट एंड यू शुड नो दिस. ओके, सो आइडियली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी मीडियम से, कि किसी मीडियम में अगर मेरे वेव को इजीली प्रोपोगेट होना है, सो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इट शुड हैव, क्या कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी चाहिए so that my wave can easily propagate through that particular medium. So the first characteristic it should have that medium should be continuous. मीडियम जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड इट शुड हैव अ इलास्टिक प्रॉपर्टी. समझाती हूँ क्या है ये. इट शुड हैव अ इलास्टिक प्रॉपर्टी सो दैट इट कैन regain its original size or original state after removal of deforming forces. अब मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि let us take an example of a sound wave. Of course we are studying sound chapter. Simply यहाँ पर एयर है, अचानक से यहाँ पे वैक्यूम आ गया. अब यहाँ से यहाँ तक तो मेरा साउंड आराम से चला जाएगा, यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स उसको आगे की तरफ, बट यहाँ पर दिस इज डिसकंटिन्यूअस और अगेन एयर आ गया. सो यहाँ पर देयर इज नो मीडियम जो मेरे साउंड को आगे की तरफ ट्रांसफर कर सके. तो अगर मेरे मीडियम, किसी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि इट शुड बी कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मतलब एयर 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 ऐसा कंटिन्यू होना चाहिए, तो ही मेरा वेव इजिली आगे प्रोपोगेट कर पाएगा. एंड दूसरी बात, इट शुड हैव अ इलास्टिक प्रॉपर्टी. इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब जो रबर वाली प्रॉपर्टी होती है. इसका मतलब क्या है कि इसके जो एयर मॉलिक्यूल्स है, मैंने आपको बताया कि एयर मॉलिक्यूल्स लेकर नहीं जाते, एयर मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करते हैं. करेक्ट है? तो जब ये एयर मॉलिक्यूल यहाँ से उसने एनर्जी ली, किसी ने यहाँ पर कुछ बोला, एनर्जी ली, इट स्टार्टेड ऑसिलेटिंग. जैसे ही एनर्जी उसने आगे वाले को दी, वापस उसने अपना जो भी एनर्जी था वो आगे पास करने के बाद वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न हो जाना चाहिए. सो इट शुड हैव अ इलास्टिक प्रॉपर्टी कि अगर सामने वाला कुछ और भी बोल रहा है तो वो अवेलेबल, ये वाला जो है, ये वाला पार्टिकल अवेलेबल होना चाहिए वापस एनर्जी लेने के लिए. Hope you are understanding what I'm trying to say. So this particle should have an elastic property. This medium should have an elastic property कि जैसे ही वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर करे, वापस वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे चला जाए कि सेकेंड एनर्जी लेने के लिए उसके पास जगह होनी चाहिए. ठीक है? So first characteristic of a medium is it should be continuous and it should have elastic property so that जैसे ही उसका जो भी एनर्जी है वो रिमूव हो या जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स हो. डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो किसी चीज का स्टेट या किसी चीज की शेप साइज को चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ बोला, मेरे आगे जो भी एयर मॉलिक्यूल होगा इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. तो मैंने जो भी एनर्जी पास की है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो मेरे पार्टिकल को डिफॉर्म कर रही है, अपने इस एयर पार्टिकल को डिफॉर्म कर रही है, वो अपनी जगह से उसको हिला रही है. तो जैसे ही मैंने जो भी एनर्जी इसमें पास की है, जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने इस पे लगाया है, वो उसने आगे पास किया तो वापस उसको अपना पोजीशन रीगेन कर लेना चाहिए. ऐसा मीडियम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आगे दे दिया तो वो वहीं झुका रह गया, तो दूसरा वाला पार्ट, दूसरी वाली एनर्जी को वो गेन नहीं कर पाएगा अपने अंदर. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम इज मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस एंड इट शुड हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी so that जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्सेस वहां से निकले, वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आकर खड़ा हो जाए कि चलो भाई दूसरा वाला एनर्जी अब आगे लेके जाना है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. समझा ये स्टेटमेंट? Yes, ma'am. Yes. समझाओ. गर्ल्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग? कुछ समझ में आ रहा है?
मेरे को एक दो लोगों का ये समझ आ रहा है, बाकी लोग यस मिस टोटल 100 पीपल हो एंड मेरे को सिर्फ एक दो लोग हैं जो बोल रहे हैं हाँ यस मिस समझ रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे मिस हैं? एक बार फिर से बताओ ना। अभी ये स्टेटमेंट व्हाई यू पीपल वर वेटिंग कि मैं पहले भाषण दूं फिर आप पूछोगे। हाँ मिस मैंने बोला था। से एक बात समझो, फिजिक्स के लिए मैं पहले बता रही हूँ, अभी तक आपको समझ में भी आ गया होगा। फिजिक्स पढ़ना है, टफ है ऐसा नहीं बोलूंगी, पर दिमाग लगाना बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए। अगर आप मुंह बंद करके बैठोगे तो मुझे ऐसा लगेगा आपको सब कुछ समझ रहा है, क्योंकि वी आर नॉट इन द ऑफलाइन क्लास की मैं बच्चों का फेस देखकर ये रिकॉग्नाइज करूँ कि ठीक है मैंने जो बोला वो बच्चों को समझा है। यहाँ पे आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लेना पड़ेगा। नहीं समझा तो नहीं समझा, तो आप उसको 10 बार पूछो, मैं 10 बार समझाने के लिए रेडी हूँ। But that effort should be taken by you, and now you are grown up student, now you are in 11th standard, तो आपको थोड़ा सा अपने तरफ से वो मेच्योरिटी लानी पड़ेगी ऑनलाइन लेक्चर्स में। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एयर वैक्यूम एयर वैक्यूम। वैक्यूम में क्योंकि हवा साउंड पास नहीं हो सकता, तो मीडियम अगर कंटिन्यूअस नहीं रहा तो मेरा जो भी वेव है वो इजिली प्रोपगेट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये कि मेरा जो भी मीडियम है वो उसकी प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो इलास्टिक प्रॉपर्टी, मतलब रबर वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि मैंने जो भी बोला मेरा पहले वाले एयर को आके जो भी मैंने एनर्जी दी है वो पहले वाले एयर को आकर उसने डिफॉर्म कर दिया मतलब आगे की तरफ ढकेल दिया। तो जैसे ही उसने मेरी एनर्जी आगे की तरफ पास की, वापस उसको अपने पोजीशन पे, इस एयर मॉलिक्यूल को अपने पोजीशन पे आकर खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो झुका का झुका ही रह गया, वापस इट शुड कम एंड स्टैंड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाना चाहिए, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना चाहिए, सो दैट मैं दूसरी एनर्जी दूं तो वो वहां पर लेने के लिए खड़ा रहे वो एनर्जी। सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस एंड इट शुड हैव अ रबर प्रॉपर्टी, दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी, कि एक बार उसके अंदर से डिफॉर्मिंग फोर्स आगे की तरफ बढ़ गया या निकल गया तो वापस उसको अपने पोजीशन पे आकर खड़ा हो जाना चाहिए। इट शुड कम टू द ओरिजिनल स्टेट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझा व्हाट आई सेड? मीन्स अगर एयर ग्लास एयर रहेगा तो उसमें साउंड पास होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ग्लास इज ऑल्सो मीडियम, एयर ग्लास एयर है तो ऐसा नहीं है कि इट विल नॉट पास, ऑफ कोर्स इट विल पास। मैंने कंटिन्यूअस वर्ड बोला तो इट इज स्टिल कंटिन्यूअस ना, एयर ग्लास Yes. एयर है तो इट इज स्टिल कंटिन्यूअस, बस आपने मीडियम वेरी कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें पास नहीं। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू से समथिंग इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये है कि मीडियम कंटिन्यू हो रहा है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि बीच में कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है? बड़े Yes, समझा। मिस जब हाँ, वेव the next- निकलता है, ऐसा sound हेलो कौन आएगा मिस, आपको? हाँ हाँ बोलो। मिस जब भी हम लोग बोलते हैं तभी वेव निकलता है, तो फिर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो ऑक्सीलेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीलेट होने हाँ। के बाद सब पार्टिकल ऑक्सीलेट होते हैं, फिर जो फर्स्ट पार्टिकल रहता है उसे फिर से उस जगह पे आना पड़ता है वो एनर्जी लेने के लिए। हाँ, आना ही चाहिए, यही प्रॉपर्टी होगी तो ही आप सारे के सारे वेव को इजीली आगे पास कर पाओगे। देखो Okay. कभी कभी क्या होता है, जब आप कोई चीज को बहुत फास्ट बोलवाते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपका कान उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता चीजों को, एक आके स्ट्राइक किया, दूसरा आके स्ट्राइक किया, तीसरा आके स्ट्राइक किया तो सब मिक्स हो जाता है। ओके, Yes. सो एक आपके भी ईयर का एक पर्टिकुलर लिमिट है सुनने का, आप उस लिमिट के ऊपर या उस लिमिट के नीचे नहीं सुन सकते, क्योंकि आपका ईयर सेंस नहीं कर पाएगा, आपका ईयर ड्रम्स इतने वाइब्रेशंस को नहीं सह पाएगा। सो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि उसका इलास्टिसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वेव्स आगे पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द मीडियम शुड हैव इनर्शिया इन इट। मीडियम के अंदर इनर्शिया होनी चाहिए। अब मुझे पहले ये बताओ कि वेव को पास करने के लिए इनर्शिया की जरूरत है, उससे पहले ये बताओ व्हाट इज इनर्शिया। जो मोशन को ओपोज करे। Opposing force. जो मोशन को अपोज करे ऐसा जरूरी नहीं है। Lack of energy. Lack To of remain energy unchanged. To remain unchanged. ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, टू रिमेन अनचेंज बोल सकते हैं, पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑफ कोर्स इनर्शिया पोजेस द प्रॉपर्टी सो दैट आप उसके अंदर चेंजेस ना ला पाओ किसी भी चीज के अंदर। आप बोलते हो कि किसी के अंदर इनर्शिया ज्यादा है, मतलब आप उसको जल्दी चेंज नहीं कर सकते।
इनर्शिया इज द रीजन कि आप हर बॉडी इनर्शिया प्रोसेस करती है, दैट इज अ सिंपल फिनोमिना अकॉर्डिंग टू न्यूटन. बट फर्स्ट व्हाट इज इनर्शिया, ये है क्या एग्जैक्टली, ये क्या है, ये टर्म जो बोल रहा है कि इनर्शिया, आपके मीडियम के पास इनर्शिया होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इनर्शिया की वजह से आप that's what I said, Kinjal, कि inertia gives you the tendency or it is a tendency to oppose something, to do nothing, ऐसा नहीं है, to oppose something. For example, मैं अगर कोई चीज, अगर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, if I kept a block here, so अगर मुझे इसको मूव करना है तो first I have to overcome its inertia. मुझे इसकी inertia को overcome करना पड़ेगा. Miss, जब मैं avoiding इसकी the inertia को change in overcome motion. करूंगी तभी मैं इसको मूव कर सकती हूँ. A Yes. force that avoiding the change in motion. Avoid the change in motion नहीं बोल सकते, oppose the change in motion बोल सकते हैं. Yes. Opposing the change in motion बोल सकते हो, avoiding नहीं बोल सकते. ये avoid करने का फिनोमिना अपना है, किसी को अवॉइड करना वो सब ह्यूमन टेंडेंसी है, नॉन लिविंग बीइंग्स का अवॉइडिंग वगैरह नहीं आता. हाँ As मतलब I कोई said, if I am saying yes, बोलो, I am listening. मैम मतलब कोई मैटर स्टेट पे मतलब रेस्ट पे यूनिफॉर्म मोशन पे तो वो Yes. इनर्शिया होगा अगर हम बाहर से कोई फोर्स जब तक अप्लाई ना करें. ऐसा नहीं है, इनर्शिया हर किसी के अंदर होता है, इनर्शिया आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इस दुनिया में हर चीज के अंदर इनर्शिया है. नो, इट्स नॉट अ पोटेंशियल Opposition to एनर्जी ऑफ change in बॉडी. position. Opposition to change in position, that is quite a good explanation. That inertia, you simply say that it is a tendency to oppose the change in motion. ये एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बट मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास एक छोटा बच्चा आकर बोले कि प्लीज एक्सप्लेन भैया मुझे इनर्शिया बता दो, तो आप क्या उसको अगर इस तरीके से बताओगे कि अपोजिशन इन द चेंज इन मोशन, तो क्या उसको समझ में आएगा कि वो क्या आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? Miss, Yes, a tendency to do nothing or to remain unchanged. that is okay. And to do nothing, nahi, to remain unchanged, that is what the explanation that have been given earlier also. People have said that ki, ma'am, inertia is the tendency to oppose the change in a motion. But I am asking कि अगर एक सिंपल टर्म में मेरे को इनर्शिया समझाना है तो मैं कैसे समझाऊंगी? एक सिंपल टर्म में मैंने Uniform motion. बोला कि एक बड़ा सा बॉक्स है, उसका इनर्शिया ज्यादा है. वो ज्यादा यूनिफॉर्म मोशन में. lack of energy. लैक ऑफ एनर्जी नहीं बोल सकते. Stationary. Resistance of any physical object. मैम उसके पास ग्रिप ज्यादा है अपोज करने के लिए. मिस इनएक्टिव. इनएक्टिव आलसीपना बोल सकते हो कहीं ना कहीं. यस, आई कैन से दिस. ठीक है. स्टेशनरी. नहीं, स्टेशनरी जरूरी नहीं है. इनर्शिया होने के लिए स्टेशनरी नहीं, इनर्शिया होने के लिए मास जरूरी है. मास की वजह से इनर्शिया है या इनर्शिया की वजह से, यू कैन से इट इज ऑल रिलेटेड टू द मास एंड इनर्शिया आर समवेयर कनेक्टेड टू ईच अदर. So it's not necessary that the object which is at rest is only having inertia. The object which is moving is also having inertia. That is only the reason your fan continues to move even if you switch off the this particular switches. Even if the object is moving, it is having inertia. कोई चीज अगर चल रही है तो वो चाहती है कि वो हमेशा चलती रहे. That is what is found. कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो चाहती है कि हमेशा चलती रहे. इसलिए अगर आप उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो वो अपनी सारी ताकत आपको अपोज करने के लिए लगा देगी और उस चक्कर में बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. जब आपकी ट्रेन रुकने वाली होती है तो वो उसको सडनली नहीं रोका जाता. उसका स्विचेस बहुत स्लोली ऑफ करके छोड़ दिया जाता है कि भाई तू आराम से रुक जा. सडन हम नहीं रोक सकते बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया. सो ऑब्जेक्ट, वो ट्रेन अगर चल रही है तो वो चाहती है कि वो चलती रहे, वो रुकना नहीं चाहती फिर. सो इनर्शिया को आप सिंपल टर्म्स में, आप बेसिक एक्सप्लेनेशन आपका बहुत करेक्ट है कि आप इनर्शिया को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द टेंडेंसी
to oppose the change in state. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एक अमाउंट एनर्जी देते जा रहे हो, वो क्या करेगा, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देगा। वो क्या करेगा, आपकी सारी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा। वो तब तक स्टोर करेगा जब तक उसकी ताकत होगी। अगर आपने एनर्जी उसकी ताकत से, उसकी इनर्शिया से ज्यादा दे दिया, तब उसके पास ऑप्शन नहीं है, तब उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सो इनर्शिया को एक दूसरे टर्म में हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज टेंडेंसी टू स्टोर द एनर्जी। लाइक अगर मेरा एक बड़ा सा ब्लॉक है एंड आई वांट टू मूव दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को मूव करने के लिए लेट अस से मैंने सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लगाया इस ब्लॉक को मूव करने के लिए, या फिर जूल्स के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में बात करूं, मैंने एक छोटी सी थोड़ी एनर्जी लगाई, ये ब्लॉक मूव ही नहीं होगा। आप सोचोगे एनर्जी गई तो कहीं कहां, क्योंकि आपको पता है ये बात, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो सारी एनर्जी जो होती है वो इस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए या इसके अंदर स्टोर होती चली जाती है। इट गेट्स स्टोर्ड इनसाइड। सो सिंपली इनर्शिया को आप सेकंड वे में ये बोल सकते हो कि it is having a tendency to store the energy. So आपके ये एयर मॉलिक्यूल्स जो है, ये जब आपने यहाँ से कुछ बोला तो ये एयर मॉलिक्यूल्स के इनर्शिया ही है, इनका मास ही है जो क्या कर रहा है, आपकी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रहा है और तो ही आगे पास कर रहा है। अगर इनके पास टेंडेंसी नहीं होती एनर्जी को स्टोर करने की, अगर इनके पास इनर्शिया नहीं होता, तो ये अपने किस जगह पे वो एनर्जी को स्टोर करके आगे भेजते। वेव को आगे भेजने के लिए इनको अपने अंदर तो उस वेव को आने देना पड़ेगा ना। So inertia can also be defined as the tendency to store energy. एनर्जी स्टोर करने की ताकत होनी चाहिए उसके अंदर, तो ही वो एनर्जी स्टोर करके आगे पास आउट करेगा। सो इनर्शिया को इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि इट इज टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन द स्टेट, या इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि आप जो भी एनर्जी लगाए जा रहे हो वो सारी एनर्जी अंदर स्टोर होती जा रही है। एक बार आपने उसकी इनर्शिया से ज्यादा एनर्जी लगाया तो वो अपना स्टेट चेंज करेगा, बट समटाइम्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी स्टोर्ड इनसाइड फर्स्ट। सीधा सीधा आप किसी चीज को मूव नहीं कर सकते। अगर आपने 15 जूल लगाया तो उसमें से 5 जूल तो उसका इनर्शिया ओवरकम करने में जाता है, 10 जूल बाकी का आगे जाएगा। सो इट शुड हैव टेंडेंसी टू स्टोर द एनर्जी। सो आपके मीडियम में एनर्जी स्टोर करने की ताकत होनी चाहिए, उसके अंदर इनर्शिया होनी चाहिए, अदरवाइज वो वेव को आगे प्रोपगेट नहीं करवा पाएगा। जब वो जगह ही नहीं लेगा अपने अंदर, जब वेव आएगा वो अपने अंदर स्टोर करेगा, ऑसिलेट करेगा, उसका स्टेट चेंज होगा, वो स्टोर एनर्जी को आगे पास करेगा, फिर आगे वाला पार्टिकल उस स्टोर्ड एनर्जी को अपने अंदर लेगा, फिर वो ऑसिलेट करेगा, फिर वो आगे जाएगा, आगे वाले पार्टिकल को पास करेगा। इस तरीके से इट शुड हैव टेंडेंसी टू स्टोर द वेव एंड देन इट विल पास आउट। सो दिस फिनोमेना इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फ्रिक्शन जो होता है। फ्रिक्शन का मतलब पता है, व्हाट इज फ्रिक्शन? Yes. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन। नाउ दिस इज द परफेक्ट टर्म टू एक्सप्लेन यू द अपोजिशन। फॉर एग्जांपल, जब ये पार्टिकल आकर इससे टकराया, टकराने के टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी टकराने में लॉस हो जाती है। Some energy is lost because of the friction of this because of the resistance of these two particular particles. जब दो चीज एक दूसरे को टकराती है तो कुछ एनर्जी वहां पर लॉस हो जाती है। सो ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ये जो टकराने, एक दूसरे के सरफेस से टकराने की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, वो बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 5 जूल की एनर्जी आगे दी, फ्रिक्शन में 3 जूल चली गई। सो ये जो फ्रिक्शन, एक दूसरे से घिसाव की वजह से जो लॉस, फ्रिक्शन इज घिसाव, घिसना। सो इन दोनों के घिसने की वजह से जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिशन क्रिएट हो रहा है, वो बहुत कम होना चाहिए। इट शुड बी नेग्लिजिबल। अगर वो नेग्लिजिबल नहीं हुआ तो देयर विल बी अ डैम्पिंग कंडीशन। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? एनर्जी का लॉस होना, बहुत ज्यादा लॉस होना। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 जूल दिया, दोनों के घिसाव की वजह से 3 जूल वेस्ट हो गया, 2 ही जूल आगे पास हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने मीडियम का पढ़ा। पहला कैरेक्टरिस्टिक, मीडियम कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि एक बार उसने डिफॉर्मिंग फोर्स आगे भेज दिया तो वापस वो पीछे आकर अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम, उसके पास इनर्शिया होना चाहिए, एनर्जी स्टोर करने की ताकत होनी चाहिए,
अगर वो एनर्जी स्टोर नहीं करेगा तो वो आगे पास कैसे करेगा? सो इट शुड हैव एनर्जी टू इट शुड हैव प्रॉपर्टी टू स्टोर द एनर्जी. एंड द लास्ट वन दैट इज, इन दोनों पार्टिकल्स, जब ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को टकराएंगे तो इनके फ्रिक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो बहुत कम होना चाहिए. इनकी फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो देयर विल बी डैम्पिंग. डैम्पिंग का मतलब होता है लॉस इन द एनर्जी. तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए एनर्जी में. तो दिस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल. समझा तीनों कैरेक्टरिस्टिक? Yes. आर यू क्लियर? Yes, ma'am. अब ये इनर्शिया वाले पार्ट के लिए एक और एग्जांपल समझा रही हूँ. अगर जिनको नहीं समझा होगा स्टोर इन द एनर्जी का टर्म, फैन का एग्जांपल लो. जब आप स्विच ऑफ करते हो, उस फैन के जो मास मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर ताकत होती है कि ऑलरेडी उन्होंने करंट के कुछ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखा है. तो जब आप यहाँ से सप्लाई बंद कर देते हो तो जो एनर्जी आकर इसके अंदर स्टोर हुई है, ये इसके इनर्शिया की वजह से, ये इसके मास की वजह से हुई है. तो वो अपनी इस मास की एनर्जी को यूज करके अपने आप को स्टॉप नहीं होने देता. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? इनर्शिया का मतलब Yes, ma'am. समझ रहा है? Yes, ma'am. जब मैंने बोला कि मैंने यहाँ से सप्लाई बंद कर दिया पर मेरा फैन रुकना नहीं चाहता, तो उसको ना रुकने में हेल्प करने वाले ये छोटे छोटे मासेस है जो क्या कर रहे हैं, पहले से एनर्जी स्टोर करके रख रहे हैं कि जैसे ही स्विच ऑफ हुआ वो अपने अंदर की एनर्जी को यूज करके थोड़े देर तक चलते रहते हैं. फिर धीरे धीरे जो एनर्जी उन्होंने स्टोर की है वो यूज हो जाती है. सो इनर्शिया को दो तरीके से बोल सकते हैं. वो यही एनर्जी लेकर अपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं ना, वो नहीं रुकना चाह रहे हैं, वो इसी एनर्जी की हेल्प से कर रहे हैं. सो इनर्शिया को इसलिए दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, अपोजिशन टू द चेंज इन स्टेट या फिर टेंडेंसी टू स्टोर एनर्जी की वो एनर्जी को यूज करके अपोजिशन क्रिएट कर सके. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसीलिए जब ट्रेन चलती है तो उसको अचानक से स्टॉप नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रेन के छोटे छोटे मासेस ने, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है. अगर आप अचानक से उसको रोक दोगे तो वो सारी की सारी एनर्जी यूज कर लेगा. किस चीज के लिए? वो सारी की सारी एनर्जी, क्योंकि वो रुकना तो चाहता नहीं, तो वो सारी की सारी एनर्जी यूज कर लेगा. तो पीछे के जितने भी डब्बे हैं वो सब उड़ के आगे आ जाएंगे. Yes. दे विल यूज देयर एनर्जी. तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले धीरे से स्टॉप कर देते हैं, उसका इंजन स्टॉप कर देते हैं और वो धीरे धीरे उसी एनर्जी को यूज करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है. सडन ब्रेक नहीं लगाते कि एकदम फटाक से इंजन को रोक दे. अगर इंजन रोक दिया तो पीछे के डिब्बों का इनर्शिया उसको आगे की तरफ ढकेल देगा. इंजन वहीं रुक जाएगा और पीछे के डिब्बे आगे आ जाएंगे. Overlap. इसीलिए ट्रेन का इंजन स्टॉप करके उसको थोड़ी देर के लिए चलने दिया जाता है कि भाई अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर हुई है इनर्शिया की वजह से, वो उसको रुकने से अपोज करेगी और चलाती रहेगी. और धीरे धीरे जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो अपने आप रुक जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ Yes, रहे ma'am. हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So this is all about Yes, inertia. So these three characteristics should be there with the medium. It should have an elastic property. Second, it should have an inertia to store the energy. तो ही वो वेव को आगे पास कर सकता है. एनर्जी स्टोर करेगा, पास करेगा, स्टोर करेगा, पास करेगा. एंड द थर्ड वन, दो मॉलिक्यूल्स के, दो एयर मॉलिक्यूल्स के टकराव की वजह से जो फ्रिक्शन में लॉस होने वाली एनर्जी है वो कम होनी चाहिए. डैम्पिंग वर्ड यूज कर रही हूँ. डैम्पिंग कम होना चाहिए, लॉस इन द एनर्जी कम होनी चाहिए. किसकी वजह से? फ्रिक्शंस की वजह से. तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, फ्रिक्शनल अपोजिशन कम होना चाहिए. तीनों कैरेक्टरिस्टिक सबको क्लियर है? Yes, yes. अरे क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाउट है इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से तो प्लीज आस्क. No मैम. No, no, no. No, no. So everything is clear? Yes मैम. Yes, ma'am. Yes. For the next lecture, please be prepared till here. यहाँ तक पढ़ के रखना.